हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में हमेशा याद रखना है कि 1000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा रहता है साइज। यू कैन सी दो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज विथ योर नेकेड आईज, कुछ भी बिना माइक्रोस्कोप के सब दिख जाता है। यहाँ कोलाइडल में, कोलाइडल इम्प्योरिटीज दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तुमने पढ़ा था पहले 11th 12th में था कहीं। कौन विजिबल होता है, लाइट यदि हम डालते हैं तो कौन के जैसा ऐसा विजिबल होता है। Then third one is biological. Now we are going to study this dissolved impurities in detail just after a few minutes. So that's why I'm not explaining you right now in detail. Now next one is biological impurities. Your whole chapter is based on this dissolved impurities only. Okay. Now fourth one is biological impurities. The example of those biological impurities are algae, fungi, and bacteria. So they are removed first of all they are killed by sterilization process, and they are removed by filtration. So sterilizing agents are liquid chlorine. In market, ChloriVet tablets are available. So to purify water, we are using that those tablets. One tablet is added in 15 liters of water. So it provides sufficient amount of chlorine to kill this algae, bacteria, fungi, etc. And ozone is also passed as a sterilizing agent. Ultraviolet light is also passed as a sterilizing agent, as well as bleaching powder is also used as a sterilizing agent. So what these sterilizing agents are doing, this bleaching powder is calcium oxychloride, CaOCl2. So bleaching powder is acting as a sterilizing agent. It is killing this algae, fungi, bacteria, and after that, that water is filtered, so we get water free from biological impurities, right? Now next one is types of water. ये सबने लिख लिया है, I hope. सिर्फ क्या क्या लिखना है मेन, पहले फर्स्ट लिखना है डिजॉल्व, सेकंड लिखना है कोलाइडल, थर्ड पे लिखना है सस्पेंडेड, और फोर्थ पे लिखना है बायोलॉजिकल, ठीक है। क्यों ऐसा, यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम से कम है, यहाँ पे 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का पार्टिकल साइज है, और 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। देन इन केस ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर फर्स्ट में ये डिजोल्व गैसेस, और ये डिजोल्व गैसेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ये इसका SPPU का क्वेश्चन है। हाउ डिजोल्व गैसेस आर रिमूव्ड, दे आर रिमूव्ड बाय सिंपली वार्मिंग एंड मैकेनिकल एरेशन। इसका डिटेल्स नहीं है तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ ये टर्म याद कर लो, मैकेनिकल एरेशन एंड वार्मिंग से रिमूव होता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Now there are two types of water. You might have experienced these two types of water, hard water and soft water. तो जिनके घर में बोरिंग का पानी आता है वो हार्ड वाटर रहता है, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर रहता है दैट इज सॉफ्ट वाटर। ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ऑलरेडी ट्रीट करके डालते हैं वाटर, है ना, जो पास करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर रहता है। उसमें ऑलरेडी वो क्यों ट्रीट करते हैं, हार्ड वाटर को ऑलरेडी वो कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर में, फिर उसके बाद वो पास करते हैं, नहीं तो उनके जो पाइपलाइन है वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। So hard water is that water which does not produce sufficient amount of foam with soap solution. That kind of water which is not producing large amount of foam with soap solution, that water is termed as hard water. And the water which produces tremendous amount of lather or foam with soap solution, that is termed as soft water. Why there is difference? It is basically due to presence of calcium and magnesium ions. देखो क्या रहता है, जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर कैसे हार्ड हुआ, देखो ये हम तुम्हें दिखाया था। When rainwater is percolated in soil, then what happens, if the soil of the particular place is containing tremendous amount of calcium and magnesium, then all those salts will get dissolved in this rainwater, and the water which you will get at the bottom of earth will contain too much amount of calcium and magnesium salt, so that water will be termed as hard water. Why? Because it contains tremendous amount of whatever salts are present here in this soil. All those salts will get dissolved when
water is percolated in soil. So you will get the water, you will get water with calcium and magnesium salts. Okay. So the water which is not producing sufficient amount of foam with soap solution is termed as hard water. And so why it is hard? Because it is having high concentration of calcium and magnesium ions. Okay. Now see, you have already learned this reaction. This is your soap molecule C17H35COONA. This is your soap molecule. ये पढ़ा था पहले, long chain fatty acid. तो एस्टर है, दिस इज एस्टर. ओके, पढ़ा है 11th-12th में कहीं था, ये मिसेल्स फॉर्म होते थे, कोलॉइडल केमिस्ट्री में था कहीं. तो व्हेन सोप रिएक्ट्स विद, suppose this salt, this calcium and magnesium, here it is present in the form of, this magnesium is present in the form of magnesium sulfate. Yes, Prasanna. Prasanna? हाँ हाँ, it is sodium salt of stearic acid. In surface chemistry, it is taught in micelle formation. Yes, you have learned, na? Good. Yes. Micelles were there. Do you remember those? जैसे लाइन वाला था और ऊपर एक हेड और टेल रहता था. Yes, ma'am. Electrophilic and electrophobic. Yes. Hydrophilic and hydrophobic. Oh, yes. Hydrophilic and hydrophobic. Philic means loving. Okay. Phobic means hating. So hydrophilic means which have affinity for water. ठीक है. Philic means loving होता है हमेशा. ठीक है. तो hydrophilic बोला, hydro means water. Philic means loving. तो water loving. ठीक है. Hydrophilic and hydrophobic ends. It has two ends. Okay. So see, when it reacts with hardness of present in water. So this magnesium is present in the form of, suppose it is present in the form of magnesium sulfate. It can be present in the form of MgCl2. It can be present in the form of magnesium sulfate, magnesium bicarbonate. Okay, so suppose it is present in the form of magnesium sulfate. Then when we are treating this water which is containing magnesium sulfate hardness or magnesium sulfate impurity, then it will react with this soap and it will form scum or white curdy precipitate. ये सबने ऐसा देखा है कि white curdy precipitate बनता है. एक मिनट, हम सबको जरा अनम्यूट करते हैं. हेलो, अनम्यूट किया है सबको, है ना? देखो अभी ये ऐसा सबने ऑब्जर्व किया है क्या, जिसके घर में बोरिंग का पानी आता है? बेटा अभी आवाज नहीं आना चाहिए, है ना? देखो हमने तुम्हें अलाउ किया है बोलने के लिए. क्या पूछ रहे हैं हम? जब भी किसके घर में ऐसा हार्ड वाटर आ रहा है जिसमें तुमने सोप में, हार्ड वाटर में थोड़ा सा सोप डाला और फिर फोम बनाया है, ठीक है? तो यदि हार्ड वाटर है तो ज्यादा फोम नहीं बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा. बहुत जो फैन बनता है ना, ऐसे बबल्स बनते, वो कम बनेंगे. ठीक है. और फिर उसमें तुमने अपने कपड़े डिप करे. ठीक है. जब तुम उन कपड़ों को निकालोगे और फिर उतना क्लीन, जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का, वो उतना क्लींजिंग नहीं करेगा. ठीक है. ज्यादा अमाउंट का सोप लगेगा यहाँ पर. क्यों लगेगा ज्यादा अमाउंट का सोप? क्योंकि तुमने सपोज 50 ग्राम सोप यहाँ पे लिया, तो उसका 50 ग्राम में से जो सपोज 30 ग्राम है, 30 ग्राम ने तो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लिया. जो 40 ग्राम सोप में से 30 तो यहाँ पे ही खत्म हो गया, उसने प्रेसिपिटेट बनाने में चला गया. और जो बचा हुआ 10 ग्राम सोप था, उसने सिर्फ क्लींजिंग का काम किया. तो कपड़े जो रहेंगे वो उतने क्लियर साफ नहीं होते. फिर अब जो ये प्रेसिपिटेट है, जो व्हाइट स्कम बना, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट या स्कम बना, ये क्या होता है, ये जो थ्रेड रहता है कपड़े का, उसमें जाके स्ट्रक हो जाता है. ये सबने देखा हुआ है. अभी अब देखो हम समझा रहे हैं तुमको, है ना? ये जो प्रेसिपिटेट बना, वो जाके जो थ्रेड के जो ऐसा पूरा धागा रहता है कपड़ों का, उनके बीच में जो होल्स रहते हैं, वहां पे जाके ये स्टक हो जाता है. ठीक है. फिर तुमने अब कपड़े धो के साफ कर सुखा लिए, सुखाने के बाद
तुमको ज्यादा साफ नहीं दिखे, उसके बाद तुमने क्या किया, उसको आयरन किया। तो आयरन जब करते हैं तो डार्क कलर के क्लोथ्स में ये स्कम एकदम क्लियरली विजिबल होता है। ऐसा सबने देखा है? डार्क कलर का तुम्हारा ब्लू कलर का कोई ट्राउजर है, उसको तुमने प्रेस किया, आयरन किया, तो उसमें, या किसी का भी ब्लू कलर का ड्रेस है, ब्लैक कलर का ड्रेस है, उसमें एकदम क्लियरली विजिबल होता है। उसको जब आयरन करते हैं तो पूरा व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तुमको लगता है वो तो क्लियर ही, साफ ही नहीं हुआ? ऐसा ऑब्जर्व किया है सबने? डार्क कलर के क्लोथ्स में ये स्कम जो जो यस तुमको मैम। व्हाइट दिखता है वो स्कम दिखता है, स्कम रहता है वो, व्हाइट दिखता है। ऐसा डार्क कलर के क्लोथ्स में तुमने प्रेस किया और तुमको दिखता है कि ऐसे व्हाइट व्हाइट सब डिपॉजिट दिख रहा है, कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, अच्छे से पूरा ब्लू नहीं दिख रहा है। Yes, ma'am. व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। Yes, ma'am. तो क्या हुआ, दिस इज Yes, ma'am. ड्यू टू वेस्टेज ऑफ सॉल्ट, सोप। सोप वेस्ट हो जाता है वहां पे, वो स्कम और व्हाइट प्रेसिपिटेट उसने बनाया और वो जाके स्टक हो गया। प्रेसिपिटेट है, देखो डाउनवर्ड एरो है। यदि कैल्शियम रहेगा तो मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा। देखो क्या हुआ, ये इसके दो मॉलिक्यूल C17H35CO होल्ड ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम स्टीरेट। ठीक है, यदि कैल्शियम रहेगा तो उसको बोलेंगे कैल्शियम स्टीरेट। ये सबके कपड़ों में ऐसा लगता है जिनके घर में भी हार्ड वाटर आता है। सॉफ्ट वाटर में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्ट वाटर में तुमने थोड़ा सा सोप डाला, खूब सारा फोम बन जाएगा। और क्यों खूब सारा फोम बनेगा? क्योंकि वहां पे तो आयन्स है ही नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारा वहां पे फोम बन जाएगा, क्योंकि और वहां पे सोप भी वेस्ट नहीं होगा। पूरा का जितना तुमने 40 ग्राम सोप डाला, तो वो 40 ग्राम सोप पूरा का पूरा क्लींजिंग एक्शन के लिए यूज होगा, मिसल्स फॉर्म करेगा और वो डर्ट को निकाल लेगा क्लोथ्स में से। और यहाँ पर क्या, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ना रीजनिंग वाले, कि यहाँ पर क्या हो गया, यदि हार्ड वाटर यूज किया तो हार्ड वाटर में क्या हुआ, हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी मैग्नीशियम की या कैल्शियम की, ये देखो अभी तुम्हें दिखाया था ना हमने, डिजोल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट थे। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये डिजोल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है। किस किस के फॉर्म में हो सकते हैं? बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, इन सब आयंस के, ये सारे पॉजिटिव आयंस के, ये सारे नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए ही केमिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ये पूरा एक बड़ी इंडस्ट्री है ना पूरा, तुमने देखा होगा ना अभी, रिवर्स ऑस्मोसिस का हम यूज करते हैं। वी आर यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, तो सारे अलग अलग ब्रांड के आरओ प्लांट मिलते हैं। देखा है ऐसा सबने? कैंट का आरओ आता है, इसका यस मैम। एक्वागार्ड का आरओ आता है, तो वो तो पूरी इंडस्ट्री है एक वाटर सॉफ्टनिंग की। ठीक है, सिविल मैकेनिकल वाले बच्चे जाते हैं इन सारी इंडस्ट्रीज में भी, और इनको सपोर्ट इनके इंडस्ट्रीज में ये वाले भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जाते हैं, क्योंकि उसमें सारे ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह भी यूज होते हैं। फिर सॉफ्टवेयर वाले भी जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस करने के लिए तो सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है ये वाटर इंडस्ट्री। चलो अभी ये सबको समझ में आ गया। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स इन वाटर। हैवी मेटल्स में कौन से आते हैं? आयरन आता है, आयरन, एल्यूमिनियम हैवी मेटल्स में आते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स इन वाटर। अब देखो अब कैसे होते हैं दूसरे हैवी मेटल्स, ये लिखना है अभी, हम कल लिखने का टाइम देंगे तुमको, अभी तुम सिर्फ देख लो, जरा थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद खत्म होने वाला, क्योंकि टाइम अटेंडेंस लेना है। तो दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, अनदर वन इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, देखो इधर से कैट से याद करते हैं, सी, फिर ये ए और ये टी, ऐसे ही बता रहे हैं ना, मजाक में, लिख के मत आ जाना। कार्बोनेट, ये तीन तरह के इसके नाम आते हैं, अनदर नेम, तो याद रखने के लिए इसको ऐसा है, कैट से याद करना है, कार्बोनेट हार्डनेस, अल्कलाइन हार्डनेस एंड टी, कैट दिख रहा है? ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और अनदर वन इज परमानेंट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट एंड नॉन अल्कलाइन। परमानेंट टेम्परेरी है तो ये परमानेंट है, अपोजिट हो गया।
Carbonate, this is non-carbonate. Alkaline, this is non-alkaline hardness. ठीक है, अब ये देखो टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? सिंपली सिर्फ ये इतने 4 चीजें याद रखना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण रहती है। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज मेनली ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। It is basically due to carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium ions. Okay, so basically 4 salts are responsible for calcium for temporary hardness. ऐसा तुम लोग ने देखा है जिसके घर में कभी जैसे फिल्टर नहीं है तो मम्मी लोग कैसे पानी उसको सॉफ्ट कैसे उसको वो करती है, 20 मिनट्स तक उसको बॉईल करते हैं पानी को। 20 मिनट्स तक बॉईल किया तो क्या हुआ, जितने भी ये प्रेसिपिटेट जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे तुम घर में करके देखना है ना, तुम्हारे यहाँ का पानी का भी टेस्टिंग हो जाएगा। 20 मिनट्स तक उसको हीट करना है, 20 to 25 मिनट्स, और फिर उसको कवर करके छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। यू विल ऑब्जर्व इफ योर वाटर इज hard water, then you will observe that precipitates, white precipitates are deposited at the bottom of container as well as on the sides of container. So what will be those precipitate? When you will these calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate are present in water in dissolved state. ये पानी में घुले हुए हैं, ठीक है, घुले हुए फॉर्म में रहते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं, 20 मिनट तक बॉईल करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में। ये दोनों प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के होते हैं। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन you have boiled water for 20 minutes or 25 minutes, then white deposits of calcium carbonate and magnesium hydroxide are there at the bottom of container as well as on the sides of container. Then what we'll do, we will simply filter that water after 2 hours, so all these precipitates will be removed. If you will filter the solution, if you will filter the water, then these salts will be removed. So your water will be free from all these impurities. So this temporary hardness, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, सिंपली घर में ही कर सकते हैं। किससे? सिंपली बॉईल करके पानी को और फिर उसको फिल्टर करके। ठीक है, अभी ये कल पढ़ाएंगे, अभी आगे का अभी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा वो। ओके, सबको क्लियर है इतना इधर तक? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल फिर लिखने को टाइम देंगे Yes, ma'am. क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट यही वाली स्लाइड है, इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, ये वाला और पिछले वाला कल फिर से रिवीजन लेंगे। ठीक है, अब कल से हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तो रेडी रहना है सबको। इसका स्क्रीनशॉट